السلام علیکم۔ مطالعہ پاکستان، زمین اور ماحول، کلاس 9، چیپٹر نمبر 3۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے چیپٹر نمبر 3 کی ایکسرسائز، جس میں مشقی سوالات و جوابات ہیں۔ 3 قسم کی اس کی کیٹیگریز ہیں۔ ان 3 قسموں میں سے پہلی قسم جو ہے، پہلا حصہ جو ہے وہ شارٹ کویسچن کا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا جو حصہ ہے وہ لانگ کویسچن کا ہے۔ تیسرا حصہ جو ہے وہ معروضی کا ہے، جس میں ایم سی کیوز بھی ہیں، جس میں فلنگ دی بلینکس بھی ہیں، ٹھیک ہے، جس میں کالمز بھی ہیں۔ تو آج اگر ریسنٹلی لیکچر میں دیکھا جائے تو چیپٹر 3 جو ہے ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے سمارٹ سلیبس کے مطابق۔ تو آج ہم چیپٹر نمبر 3 کی ایکسرسائز کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ مشقی سوالات و جوابات جو چیپٹر کے اینڈ پہ مینشن کیے ہوتے ہیں۔ تو چیپٹر 3 کو ایکسرسائز جو ہے اس کے جو میں نے پیج ہیں وہ بھی میں نے مینشن کر دیا، پیج نمبر 92 سے لے کر پیج نمبر 94، پیج نمبر 92 سے 94 تک اس کی ایکسرسائز ہے، جس میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے مختصر سوالات و جوابات ہیں، ٹھیک ہے، جسے شارٹ کویسچن بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد لانگ کویسچن بھی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو ایم سی کیوز، معروضی میں، آبجیکٹیو میں ایم سی کیوز بھی ہیں، فلنگ دی بلینکس بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کالمز بھی ہیں۔ تو آج ہم چیپٹر نمبر 3، ٹھیک ہے، زمین اور ماحول، کلاس 9، اس کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے۔ تو میں نے جو شارٹ کویسچن ہے ایکسرسائز کے، ان کو میں نے بورڈ پر مینشن کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو شارٹ کویسچن کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو شارٹ کویسچن نمبر 1 جو ہے، محلِ وقوع کی تعریف کریں۔ پاکستان کے محلِ وقوع کی تعریف کریں۔ تو پاکستان محلِ وقوع کی تعریف کریں۔ محلِ وقوع کے لحاظ، محلِ وقوع جو ہے کسی بھی ملک کا اگر دیکھا جائے جغرافیائی طور پر اس کی لمبائی دیکھی جائے، ٹھیک ہے، اس کی چوڑائی دیکھی جائے، ٹھیک ہے، اس کے طبی خط و خال دیکھے جائیں، تو اس چیز کو جانچنے کا عمل کیا کیا جاتا ہے؟ محلِ وقوع، ٹھیک ہے۔ آگے شارٹ کویسچن نمبر 2 جو ہے، پاکستان کے 4 قدرتی خطوں کے نام لکھیں۔ پاکستان کے 4 قدرتی خطوں کے نام لکھیں۔ تو پاکستان کے 4 قدرتی خطوں میں سے ایک تو میدانی خطہ، ٹھیک ہے، اس کا یہ شارٹ کویسچن ہے، کیونکہ ایکسرسائز سے جو شارٹ کویسچن ہے وہ بھی اگر بورڈ کے کویسچن پیپر کے پوائنٹ آف ویو کے لحاظ سے دیکھے جائیں تو یہ بھی بہت اہم ہے، تو یہ بھی کرنے چاہیے۔ تو 4 قدرتی خطوں کے نام میں سے پہلا جو قدرتی خطہ ہے میدانی خطہ، صحرائی خطہ، نیم خشک اور مرطوب خطہ، ٹھیک ہے، اس کے بعد نیم مرطوب اور خشک ساحلی خطہ۔ یہ 4 قسم کے جو خطے ہیں جو پاکستان میں پائے جاتے ہیں۔ اب سیموتھور کا مفہوم بیان کریں۔ یہ ریسنٹلی لیکچر میں اگر دیکھا جائے تو سیموتھور کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا تھا۔ سیم کسے کہتے ہیں؟ سیم کہتے ہیں زیر زمین پانی کی زیادتی، یعنی کہ پانی کی سطح جو ہے، پانی کا لیول جو ہے وہ زیادہ ہو جانا، اس چیز کو کیا کہا جاتا ہے؟ سیم کہا جاتا ہے۔ اب تھور کسے کہا جاتا ہے؟ کہ زمین کا بنجر ہو جانا، ٹھیک ہے، زمین کا خشک ہو جانا اور زمین کا صحرا میں تبدیل ہو جانا، اور زمین پر ایسی بیماریوں کا لاحق ہونا جس کی وجہ سے ایسے زمین کا بنجر ہو جانا کہ جس پر نہ کوئی فصل اگائی جا سکے، نہ کوئی پودا لگایا جا سکے، نہ ہی درخت لگایا جا سکے۔ تو یہ تھا سیموتھور کا مفہوم۔ آگے شارٹ کویسچن نمبر 4، جنگلات کے 2 فوائد لکھیں۔ اب اس کا جواب جو ہے، جنگلات کی اہمیت جو بورڈ کے پوائنٹ آف ویو کے لحاظ سے دیکھا جائے نہایت اہم لانگ کویسچن ہے۔ اس میں جنگلات کے 2 فوائد جو ہیں وہ بتائی گئی ہیں۔ جنگلات کی لکڑی سے کھیلوں کا سامان بنایا جاتا ہے، فرنیچر کا سامان بنایا جاتا ہے جو عمارتوں میں استعمال ہوتا ہے، اور جنگلات سے بنے ہوئے سامان کو، اشیاء کو پاکستان برآمد کر کے، یعنی کہ پاکستان جو ہے ایکسپورٹ کر کے، بیچ کر کافی زرعی مبادلہ کماتا ہے۔ یہ تو تھا اس کا ایک فائدہ۔ اگر دوسرا فائدہ دیکھا جائے تو جنگلات کسی بھی علاقے یا ملک کی آب و ہوا کو خوشگوار بنانے میں کارآمد ثابت ہوتے ہیں۔
जंगलात की वजह से एवेपोरेशन में यानी आबी बुखारात में क्या होता है, इजाफा होता है। आगे शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5, पाकिस्तान में ग्लेशियर के नाम लिखें। पाकिस्तान में कितने ग्लेशियर पाए जाते हैं? अब शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में आपको आ सकता है पाकिस्तान में कितने ग्लेशियर पाए जाते हैं, या पाकिस्तान में कोई से 3 ग्लेशियर के नाम लिखें। तो आप लिख देंगे सियाचन, बलतोरो, एस्पर, ब्याफू और बतौरा। ठीक है, ये 4-5 किस्म के जो ग्लेशियर हैं ये पाकिस्तान में पाए जाते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि वो ऐसे भी आपसे पूछ सकते हैं कि पाकिस्तान में कितने किस्म के ग्लेशियर पाए जाते हैं, या ऐसे भी आपसे पूछ सकते हैं कोई से 3, कोई से 2 या कोई से 4 ग्लेशियर के नाम लिखें। आगे शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6, पानी की आलूदगी के बचाव के तरीके बयान करें। ठीक है, पानी के आलूदगी के बचाव के तरीके बयान करें। जैसे मैंने अगर रिसेंटली लेक्चर में देखा जाए तो उसमें भी पानी की आलूदगी के बचाव के तरीकों के बारे में हमने डिस्कस किया था। और पानी की आलूदगी के बचाव के तरीके में से बेसिकली तरीका ये है कि घरों, फैक्ट्रियों, कारखानों से जहाँ पर निकासी का निज़ाम है, ठीक है, उसमें क्या किया जाए कि फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए जाए ताकि पानी साफ होकर जो जहरीला और केमिकल वाला जो पानी है उसे फिल्ट्रेशन किया जाए। फिल्ट्रेशन करने के बाद नदी, नालों, समंदर या दरिया में वो पानी जो है वो फेंका जाए। तो इस तरह हम पानी की आलूदगी को के बचाव का तरीका अपना सकते हैं। अब सेहरा ज़दगी की तारीफ बयान करें। सेहरा किसे कहते हैं? ऐसी जमीन जिसका बंजर हो जाना, ठीक है, जमीन पर बार बार एक ही फसल का उगाना, जमीन को यानी कि जमीन पर बगैर इख्तियार किए हुए जानवरों को छोड़ देना, जानवरों का एक ही जमीन पर ज्यादा चढ़ना, जिसकी वजह से जमीन जो है खुशहाली का मौसम होना, बारिशों का कम होना, तो जिसकी वजह से जमीन जो है वो किस में तब्दील हो जाती है? सेहरा ज़दगी में। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 अगर देखा जाए तो इसमें पूछा गया है पाकिस्तान में बेसिकली अगर देखा जाए तो कितने किस्म की नहरें हैं, ठीक है, और पाकिस्तान में नहरों की इकसाम बयान करें। पाकिस्तान में 4 इकसाम की नहरें पाई जाती हैं, जिनमें अगर देखा जाए तो दुआमी नहरें उसे कहते हैं ऐसी नहरें जो सारा साल आबादी के लिए पानी फराहम करती हैं, ऐसी नहरों को दुआमी नहरें कहते हैं। गैर दुआमी नहरें कहते हैं जो सिर्फ मौसम गर्मा या मौसम बरसात में बहती है, इन्हें गैर दुआमी नहरें कहते हैं। उसके बाद तुगयानी या सैलाबी नहरें उन्हें कहा जाता है जो सैलाब की सूरत में, ठीक है, नागहानी आफत की सूरत में जहाँ पर पानी छोड़ा जाता है उन्हें तुगयानी या सैलाबी नहरें कहते हैं। राबता नहर किसे कहते हैं? यानी कि इसकी चौथी किस्म जो है राबता नहर है। एक नहर का दूसरी नहर से मिलना, तो इसे क्या कहते हैं? राबता नहर। पाकिस्तान में 7 किस्म की राबता नहर पाई जाती हैं और इनकी अगर लंबाई भी देखी जाए तो इनकी लंबाई जो है 590 मीटर है। अब शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 जो कि एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें ये पूछा गया है कि जमीनी दर्जा हरारत में जमीन के टेम्परेचर में इजाफे की वजह से कौन सी मौसमियाती तब्दीलियां जो हैं वो रोनुमा हो रही हैं। जमीनी टेम्परेचर में इजाफे की वजह से बहुत सी मौसमियाती तब्दीलियां रोनुमा हो रही हैं, जैसे गर्मी का मौसम गर्मा की जो ड्यूरेशन है उसका बढ़ जाना, ठीक है, उसके बाद बेवक्त बारिश होना, ठीक है, बेमौसम बारिश होना, कभी तो बारिशों का ज्यादा होना, कभी बारिशों का कम होना, ठीक है, एकदम सर्दी की शिद्दत में इजाफा होना, एकदम सर्दी की शिद्दत में कमी वाक़या होना। तो इसे क्या कहते हैं? मौसमियाती तब्दीलियां। ये किस वजह से रोनुमा होती है? जमीनी टेम्परेचर में इजाफे की वजह से। आगे शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10 अगर देखा जाए तो जंगलात के कटाव के 2 नुकसान बयान करें। जंगलात को जो हम अगर काट देते हैं तो इसके 2 किस्म के नुकसान हैं, तो उसके बारे में पूछा गया है। जंगलात के कटाव की वजह से आबो हवा में आलूदगी भी पैदा होती है, ठीक है, टेम्परेचर में इजाफा होता है,
जंगलात के कटाव की वजह से सियाहत को फरोग हासिल नहीं होता। जंगलात के कटाव में की वजह से एक बड़ा जो नुकसान जो है टेम्परेचर में इजाफा होता है, एवापोरेशन आबी बुखारात में कमी होती है, ठीक है, और गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा होता है। अब लॉन्ग क्वेश्चन, इसके 5 लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि एंड पे मेंशन किए गए हैं। पहला लॉन्ग क्वेश्चन अगर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से देखा जाए, पाकिस्तान के मॉलिक्यूल की अहमियत बयान करें, जो कि नहायत अहम लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। पाकिस्तान की और बोर्ड में बार बार ये आ चुका है। और दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन जो है, पाकिस्तान की आबोहवा के खित्ते और इंसानी जिंदगी पर इसके असरात बयान करें, ये भी एक अहम लॉन्ग क्वेश्चन है। तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन जो है, जिसको हमने रिसेंटली लेक्चर्स में डिस्कस किया है, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को, कि पाकिस्तान के तनाज़ुर में माहौलियाती मसाइल, सीमोतोड़ और जंगलात के कटाव के बारे में आप क्या जानते हैं, तफसील लिखें। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 जो है, आलूदगी से क्या मुराद है, ये किस तरह हमारे माहौल को आलूदा कर रहा है, इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया। तो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 जो है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, और चैप्टर नंबर 3 ज़मीन और माहौल, ठीक है, अगर इसको सामने रखा जाए तो नहायत अहम लॉन्ग क्वेश्चन है, जो बोर्ड में बार बार आ चुका है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 और लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 जो कि एक्सपेक्टेड है, ये लॉन्ग क्वेश्चन हर दफ़ा इस चैप्टर में से आते हैं। तो इन 2-5 लॉन्ग क्वेश्चन में से स्मार्ट सिलेबस के लिहाज से देखा जाए, वे 2 लॉन्ग क्वेश्चन भी आप अच्छे तरीके से कर देते हैं, तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो है एक्सपेक्टेड हो जाता है, ठीक है। क्योंकि बार बार अगर पिछले 2014 से लेकर 2020 तक देखा जाए, तो ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 में से बार बार बोर्ड में आ चुके हैं, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक था। उसके बाद अगर देखा जाए तो फिर ऑब्जेक्टिव भी है। ऑब्जेक्टिव जो है पेज नंबर 92 से लेकर 93 तक है। इसमें मैंने शुरू में भी बताया था, इसमें एमसीक्यूज भी हैं, इसमें कॉलम्स भी हैं, ठीक है, और इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स भी है। तो आप बुक के लिहाज से पेज नंबर 92 और 3 पर ये जो है एक्सरसाइज जो है वो देख सकते हैं, और जिस चीज़ में नहीं समझ आती तो आप उससे पूछ सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक था ज़मीन और माहौल, चैप्टर नंबर 3। आज हमारा चैप्टर नंबर 3 जो है स्मार्ट सिलेबस के लिहाज से कंप्लीट हो चुका है। तो आप पूरे चैप्टर को अच्छी तरीके से रिवाइज करें। शुक्रिया।